کہ ہم ایگزسٹنگ ابھی چینج ہو جائے گی، ریلوے لائن بچھے گی، یہ چترال والا ایکسیس بھی کھل جائے گا، چونٹر پاس والا بھی ایکسیس کھلے گا. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ڈاکومنٹس میں ہیں. سی پیک از نو مور چائنا پاکستان. اچھا. سی پیک ہیز دا امریکن انویسٹمنٹ، سی پیک ہیز دا یو اے ای انویسٹمنٹ، ٹرکش انویسٹمنٹ، رشین انویسٹمنٹ. اور یہ زبانی باتیں نہیں ہیں. اس کے آپ دیکھیں گے کہ کس ملک کا کتنا حصہ ہے، آپ کو لانگ ٹرم پلان 2030 میں واضح طور پر نظر آئے گا. گلگت بلتستان کی جو اسٹیٹس ہے اور صوبے کی حیثیت ہے وہ بہت واضح ہے. واضح اس طرح سے ہے کہ گلگت بلتستان ایک آئینی صوبہ ہوگا، اور چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی، اسٹیٹ آف پاکستان کی اور کشمیر ڈسپیوٹ سے کسی نہ کسی طرح ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم پسند کریں نہ پسند کریں، گلگت بلتستان کا ایک تعلق ہے. اس تعلق کی وجہ سے اس کی جو آئینی حیثیت تو ہوگی، لیکن یہ صوبہ پروویژنل ہوگا. صحیح. جب السلام علیکم، آئی ایم این کے ساتھ آپ کا ہوسٹ شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں آج ہم دو ایشوز کے اوپر بات کریں گے. پہلا ہوگا گلگت بلتستان جو صوبہ بننے جا رہا ہے، اس کی کس طرح کی حیثیت ہوگی. اور دوسرا ایشو جو موضوع ہے وہ ہے سی پیک. گلگت بلتستان کا سی پیک کے اندر کوئی حصہ، کوئی شیئر ہے نہیں ہے. بہت ساری باتیں اس کے اوپر لوگوں نے کہی ہیں اور اب بھی موضوع بحث ہے. گلگت بلتستان کو جب صوبہ نہیں تھا تو صوبے کے حق میں آوازیں تھیں، اور اب جب بن رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ صوبہ نہیں بننا چاہیے. دیکھتے ہیں یہ کیا معاملات ہیں. میرے ساتھ جو آج شریک گفتگو ہیں، معروف تجزیہ کار، لکھاری، ادیب صبا الدین. صبا صاحب، بہت شکریہ. صوبہ بنے گا ہوپ فلی، کیا اس کی حیثیت ہوگی آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ شبیر بھائی. اٹس آلویز اے پلیزر ٹو سٹ ود یو. پلیزر. گلگت بلتستان کی جو اسٹیٹس ہے اور صوبے کی حیثیت ہے وہ بہت واضح ہے. واضح اس طرح سے ہے کہ گلگت بلتستان ایک آئینی صوبہ ہوگا، اور چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی، اسٹیٹ آف پاکستان کی اور کشمیر ڈسپیوٹ سے کسی نہ کسی طرح ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم پسند کریں نہ پسند کریں، گلگت بلتستان کا ایک تعلق ہے. اس تعلق کی وجہ سے اس کی جو آئینی حیثیت تو ہوگی، لیکن یہ صوبہ پروویژنل ہوگا. صحیح. جب صبا صاحب، جب ہم آئینی صوبہ ہوگا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کے اندر ترامیم ہوں گی ضروری جو بھی ہیں، اور ظاہر ترمیم کے لیے، ترامیم کے لیے پھر 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوگی. تو ان سب کی کنسنسس سے ہی ہوگا نا؟ اس پہ تو کنسنسس ہے، اس پہ نیشنل کنسنسس ہے. سب سے پہلے بات یہ تھی کہ یہ گلگت بلتستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ میں جب کہہ رہا ہوں تو میں یہ تیسری ریزولوشن ہماری اسمبلی کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کو، وفاق کو جا چکی ہے. تو یہ تیسری کنزیکٹیو ریزولوشن ہے. تو یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا ہے. یہ 2 دفعہ ہم پہلے بھی ڈیمانڈ کر چکے ہیں، یہ تیسری مرتبہ ہم ڈیمانڈ کرنے گئے ہیں. جب ہم آئینی صوبے کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آئین کی وہ تمام شکیں جس کے اندر گلگت بلتستان کی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں نمائندگی ہوگی، اس حوالے سے جتنے اس کے شق ہیں، آرٹیکلس ہیں، ان کو چھیڑا جائے گا، ان میں ترمیم ہوگی. ٹھیک. اور ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ مطلب آگے جب جنرل الیکشنز ہوں گے پاکستان میں، تو بائی دیٹ ٹائم یہ چیزیں شاید سٹریم لائن ہو گئی ہوں گی؟ اس میں مجھے کوئی زیادہ وقت لگتا نظر نہیں آ رہا. ایک تو نیشنل کنسنسس ہے، اور ابھی سے نہیں، جو ہمارے الیکشنز ہوئے یہاں پہ صوبے کے، اس سے پہلے کا کنسنسس ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جب پاکستان میں، پورے ملک میں جنرل الیکشنز ہوں گے تو گلگت بلتستان میں بھی جنرل الیکشنز ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجودہ حکومت ہے، اس کا جو ڈیوریشن ہے گورنمنٹ کی، وہ آدھی ہوگی، نصف ہوگی، بلکہ میرے خیال میں نصف سے بھی ابھی کم ہوگی. تو بہت جلد جب یہ 2 سال کا عرصہ تقریباً ہو جائے گا تو وی ول بی گوئنگ ٹو ان الیکشن موڈ. جس طرح پورے ملک میں الیکشن ہوں گے، تو یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اوور دا پیریڈ آف نیکسٹ فیو منتھس یہ ہمیں صوبے والا جو پوری کاروائی ہے یہ کنکلوڈ ہوتے نظر آ رہی ہے. جب صوبہ بنے گا، ظاہر ہے پھر نئے قوانین کے تحت الیکشنز ہوں گے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں بھی نمائندگی ہوگی. یہی اس سے ہم تعبیر کریں گے نا؟ جی بالکل. اس میں ہماری قومی اسمبلی میں نمائندگی ہوگی اور سینٹ آف پاکستان میں ہماری نمائندگی ہوگی. اس کے علاوہ جتنے
फेडरेटिंग यूनिट्स के जमा होके बैठ के कंसेंसस के कॉमन इंटरेस्ट की प्लेटफॉर्म्स हैं, एनएफसी, एनईसी और जितने सब में हमारी फॉर्मल नुमाइंदगी होगी। जो कश्मीर अफेयर्स का रोल है मिनिस्ट्री का, वो भी माइनस हो जाएगा उसके बाद? जी, कश्मीर मिनिस्ट्री का रोल भी माइनस होगा और हमारी जो काउंसिल है, जीबी काउंसिल, वो हाँ भी खत्म हो जाएगी। सही। तो अब आगे इलेक्शन वैसे होने थे एज पर प्रीवियस शेड्यूल, तो अब तो नहीं होंगे जाहिर है। जी नहीं, अभी इलेक्शन होते नजर नहीं ठीक आ है, सबा साहब ये बताइए, बाज़ लोग हम देखते हैं कि किसी ज़माने में सुबह के हक में थे, फिर जब सुबह बनता दिखाई दे रहा है तो अब वो मुखालिफत कर रहे हैं। लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहेंगे या क्या, कि नियत में कोई फतूर है? रहा। आपने बिल्कुल दुरुस्त तरफ निशानदेही की है, ये लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अभी रिसेंटली एक कौम परस्त पार्टी ने एक अपना एक ऑब्जेक्शन सूबे के ऊपर इन्होंने बाकायदा पब्लिश किए हैं। अगर वो ड्राफ्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा उसमें ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल उसमें एक सवाल ये उठाया गया है कि क्या सूबे की जो यहाँ पे सूबा होगा, सूबा असम्बली आइन बना सकेगी? तो कौन सी फेडरेटिंग यूनिट है पाकिस्तान की जो आइन बनाती है? तो ये सवाल सिरे से गलत है। उसके बाद अगला सवाल इसमें ये डाला गया है कि क्या इस पे ज़मीनों पे कब्जे ख़त्म हो जाएंगे? तो ये इस तरह की जो सवालात हैं, एक तो कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं लोगों की, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सूबा तो बनने जा रहे हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या सूरत हाल होगी। इनसिक्योरिटीज़ हैं और इनसिक्योरिटीज़ की बेसिक वजह है लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंप्लीट सब्जेक्ट, कि ये क्या हो रहा है। गवर्नमेंट की जो और ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग है, स्टेट की थिंकिंग है, वो लोगों को नहीं पता। तो बेहतर ये होता है कि पहले क्या होने जा रहा है उसके ऊपर पहले नॉलेज लिया जाए और उसके बाद कोई तबसरा किया जाए। अगर आप ऐसे ही अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बेस करते हैं तो बातचीत करेंगे तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। सही। इनसिक्योरिटीज़ की आपने बात की, लोग गालिबन ये भी सोच रहे हैं कि उसके बाद टैक्स लगेंगे बहुत सारे, जो चीज़ों के ऊपर अगर टैक्स लगेगा तो गिलगित बाल्टिस्तान में लोग गरीब हैं और इस तरह के भी खदशात हैं। तो क्या टैक्स वैक्स लगेगा? ये तो कोई मेरे ख्याल में डिफाइंड चीज़ है, अभी तो नहीं है ना? देखिए, मैं अगर मुझे आप ज़ाती तौर पे पूछें तो जो हमारा स्पेशल स्टेटस था गिलगित बाल्टिस्तान का, वो बहुत कीमती स्टेटस था। वो वाकई ऐसा स्पेशल स्टेटस था जो हमें हुकूमत पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने उसने हमें लाडला बनाया हुआ था। यानी सब्सिडीज डिमांड करना, टैक्स पे छूट डिमांड करना, एनसीपी गाड़ियों को लेके आना, और जो भी हम कहें, जो भी रीज़न दें इसकी, जनाब हमारे साथ 70 साल में ये ज्यादती हुई है, वो ज्यादती हुई, वो पुरानी बातें हैं। लेकिन अगर हम अभी किसी फॉर्मल मोड में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि लॉस तो फिर आएंगे। यहाँ पे आपकी कंपनीज थी, कंपनीज ऑपरेट होती थी, यहाँ पे एससीसीपी नहीं थी, एससीसीपी आ गई। तो पहले आप जॉइंट स्टॉक के अंदर थे, अभी प्रॉपर एक फॉर्मल मैकेनिज्म कंप्लायंस रेगुलेशन का बना। तो इसी तरह जो गवर्नमेंट का सेटअप होगा उसको भी एक फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल कवानीन के साथ वो लागू किया जाएगा। तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स तो अभी भी हम देते हैं। क्या हम साबुन खरीदते हुए टैक्स नहीं देते, सेल टैक्स नहीं देते? क्या दूसरी ज़मीन में बैंक से विड्रॉल्स करते हैं, क्या हम कटौतियाँ नहीं करवाते? क्या मोबाइल पे हम चार्ज करते हुए बैलेंस क्या हम टैक्स नहीं देते? टैक्स तो है ही है, आप दे रहे हैं टैक्स ऑलरेडी। तो सिर्फ उसको एक्स्ट्रा हवा बनाने वाली बात है कि जनाब हम पता नहीं हम पे प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा या हमारे पे पता नहीं क्या होगा, तो दैट इज अननेसेसरी फेयर। पहाड़ी खित्ते जो दुनिया के जंगलात का 5वां हिस्सा है, आलमी सतह पर बेहद अहमियत रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के निहायती हसास पहाड़ी सिलसिले को मौसमियाती तब्दीली की वजह से खतरात दरपेश हैं। कुदरती जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ देकर 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का शजरकारी मुहिम के तहत गिलगित बल्तिस्तान में 17 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। आइंदा नस्लों के लिए इन पहाड़ी वादियों की हरियाली को महफूज रखने में हमारा साथ दें। सीपेक के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, अब भी हो रही हैं, माजी में भी हमने सुना, मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट के दौरान भी दावे भी आए, लेकिन हमें बज़ाहिर तो कुछ नहीं है इस सीपेक के अंदर। अगरचे हमें गेटवे भी कहा जाता है, चाइना हमारा हमसाया भी है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं हमें मिलेगा। हमारी आदत ये है शब्बीर भाई कि हम अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए हम माइलस्टोन सेट कर देते हैं कि ऐसे होगा तो ये होगा, सीपैक ऐसे चलेगा तो फिर शायद हमारी कामयाबी है। सीपैक असल में कोई टाइम बाउंड एक्टिविटी नहीं है। सीपैक जब शुरू में पाकिस्तान में जब इसकी हाइप आई, उन्होंने कहा 2017 में आप ये डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पे आप पढ़ेंगे, हमारे इधर यहाँ प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स पे आप देखेंगे 2017 में सीपैक खत्म हो जाएगा या कंक्लूड हो जाएगा। तो मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि सीपैक अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ।
सी पैक इनेबलिंग इन्वायरमेंट है अभी, यानी यहाँ बिजली की कमी थी, यहाँ पे हमें एसईजीज चाहिए थे, यहाँ पे सड़कें चाहिए थी, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये चीज़ अनफोल्ड हो रही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की आपने बात की, गिलगित बल्तिस्तान में हमने अक्सर सुना है, बहैसियत सहाफ़ी मैंने खुद सुना भी है और मैं जानता भी हूँ कि डॉक्यूमेंट्स तक हमारी रसाई नहीं थी। मुझे नहीं लगता किसी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के सियासतदान ने, किसी सहाफ़ी ने एक्सेस किया हो, देखा हो खुद से कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। आपको कोई मौका मिला कोई डॉक्यूमेंट पढ़ने का? शबीर भाई, जितने भी जेसीसीज हुए हैं, जितने भी मीटिंग्स हुई हैं बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक हैं। और जो लॉन्ग टर्म प्लान है 2030 का, वो जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसकी वेबसाइट पे लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन मैं वसूख से कह सकता हूँ कि हमारे किसी भाई ने इतनी जहमत नहीं की होगी वो डॉक्यूमेंट निकाल के पढ़े। और देयर इज जस्ट अ प्लान। अगर मैं बात करता हूँ कि मैं यहाँ से लेके काशगर तक रेलवे लाइन बिछेगी, तो वो ज़बानी है। ये इसके मुकाबले एक और असल सीपेक तो वहाँ पे है, ये ज़बानी बातें नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। जब मैं कहता हूँ कि गिलगित चित्राल चकदरा सड़क बनेगी, जब मैं कहता हूँ कि शूटर पास से हम सड़क गुजारेंगे, और जब मैं ये कहता हूँ कि हम के एग्जिस्टिंग के अभी चेंज हो जाएगी, रेलवे लाइन बिछेगी, ये चित्राल वाला एक्सेस भी खुल जाएगा, शूटर पास वाला भी एक्सेस खुलेगा, ये सारी वो बातें हैं जो डॉक्यूमेंट्स में हैं। कितने टाइम में कोई इस तरह का प्रोजेक्ट शंटर पास की आपने बात की, लेट्स सपोज, कितना हमें टाइम लगेगा उसको? जबीर भाई, ये जो सी पैक है ना, ये तो अभी इनेबलिंग इन्वायरमेंट उसकी बन रही है, इनेबलिंग ऐसा कोई जो BRI है चाइना के, उसमें तो इसमें तो हमारी पूरी लाइफ टाइम लग जाएगी इस इन्वायरमेंट को इनेबल करते करते। और प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, लेकिन हम अगर अपने सामने देखें तो इंशाल्लाह हमारे सामने ये इनेबलिंग इन्वायरमेंट, यानी हमारे पावर की रिक्वायरमेंट्स, हमारे कम्युनिकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स की कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस की, हमारे सामने इंशाल्लाह हमारी लाइफ टाइम में होगी। सही। कोई सभा साहब आप समझते हैं कोई गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है? अगर हमने सीपेक को सक्सेसफुल बनाना है, अगर हम ये समझते हैं कि यहाँ से प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, तो हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स क्या आपके ख्याल में इतना काबिल है कि हम कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर कम से कम कंसीव करें, उसको फ्लोट करें, लिखें? शबीर भाई, आई सी थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज, हजारों कंपनियां गिलगित बल्तिस्तान की तरफ में दौड़ लगाते देख रहा हूँ आज अच्छा। जाने, और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मैन पावर को मैं गिलगित बल्तिस्तान में आते देख रहा हूँ। और क्यों देख रहा हूँ मैं उनको आते हुए? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं है। सीपैक इज नो मोर चाइना पाकिस्तान। अच्छा। सीपैक हैज द अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, सीपैक हैज द यूएई इन्वेस्टमेंट, टर्किश इन्वेस्टमेंट, रशियन इन्वेस्टमेंट। और ये ज़बानी बातें नहीं है। इसके ग्राफ आप देखेंगे कि किस मुल्क का कितना हिस्सा है, आपको लॉन्ग टर्म प्लान 2030 में वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। लेकिन जब मैं ये सारा देख रहा हूँ कि इतनी कंपनियां यहाँ आएंगी, पाकिस्तान से आएंगी, पाकिस्तान से बाहर से आएंगी, टर्की से आएंगी, हमारे लोग कहाँ जाएंगे अगर वो इनेबल ना हुए? यहाँ पे फिर हम कहते हैं वो सीपैक तो थ्रेट है, और सीपैक तो थ्रेट तब है जब हम तैयार ना हो। हम अगर लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज और दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेज में अगर हम अपना वो करते हैं, फिर दूसरा, अगर कल को यहाँ पे कराकरम यूनिवर्सिटी के नीचे कोई बहुत बड़ा हाइडल प्लांट बनता है, तो मुझे ये बताइए कि वहाँ कितने हमारे पास ऐसे इंजीनियर्स हैं जो वहाँ पे वर्क होते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम पिछले दिनों दियामर बादशाह डैम पे, हमारे दियामर के यूथ का बहुत बड़ा एजुकेशन था, और वो एजुकेशन था कि हमें कासिद, छोटे छोटे पोस्ट, चौकीदार, इस तरह के स्लॉट्स दी जाए। तो वाई जीबी की यूथ क्यों नहीं टॉप स्लॉट्स के लिए कम्पीट कर सकती? कि हम उनके क्या हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल उस मुकाबले का नहीं है कि हम जब ये प्रोजेक्ट्स आए तो उसमें एम्प्लॉय हो सके? एंड दिस इज अ चैलेंज फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट। क्या पीटीआई गवर्नमेंट यूथ पर तवज्जो देगी? क्या यूथ को इस काबिल कर पाएंगे हम कि वो यहाँ पे अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें? और मैं आपको एक बड़ा मुख्तसर सा अंदाज़ा बताता हूँ, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 1.5 लाख से ज़्यादा वो यूथ है जो कि ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, एजुकेटेड है, स्किल्ड है, लेकिन जॉब नहीं है। रीज़न, वो स्किल उनके पास नहीं है जो एम्प्लॉयबल स्किल हो। तो हमने तो इनको एम्प्लॉयबल स्किल देना है। भाई बहुत शुक्रिया सवादीन साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, लम्हा फ़िक्रिया है, यूथ हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में है,
ایجوکیٹڈ یوتھ ہے لیکن وہ ایجوکیشن نہیں ہے, وہ اسکل نہیں ہے کہ ان کو جاب بھی مل سکے, اور ہماری ساری توجہ ماضی کی طرف ہی گورنمنٹ کے اوپر ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.